So we are very happy. I think we can start now. It is 4 o'clock. So I welcome everyone, all the participants and all the speakers. As you all are aware, we are running this series since last 1.5 months, almost 2 months now, and we are doing a program for all our patients, friends, and general public on different topics of concerning their health in relation to gynecology. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड ऑप्शंस. वी ऑल आर लिविंग इन एन एरा जहां हम हर चीज प्लान करके चलना चाहते हैं एंड फैमिली प्लानिंग इज समथिंग जो अब टैबू नहीं है. Young people, everyone, we all are aware that we can plan our family and we can avoid unwanted pregnancies. This is very, very important and it is very scientific and very easy way. So आज हमने क्या करना है, आज हमारे साथ डॉक्टर सोनम, डॉक्टर ईशा are there and I will also speak. हम आपको different aspects of कॉन्ट्रासेप्शन दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स बताते हैं और हम ये भी बताएंगे कि किस एज ग्रुप में कौन सा मेथड इम्पॉर्टेंट है और कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड डू पे अटेंशन. इट इज समथिंग विच अफेक्ट्स एवरीवन्स लाइफ right from the menarche till the menopause. Any women can become pregnant and to avoid unwanted pregnancies we should know कि आजकल क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं सेफली. सो आई इनवाइट डॉक्टर सोनम. शी इज अ वेरी सिंसियर young doctor who is going to take you through the journey of contraception. I have been lucky to be associated with her for a long time and very, very intelligent, very sincere, very dedicated doctor and youngster and a very with a very promising future. So I invite you, Sonam, to start the webinar. Hello, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. That was a beautiful introduction for me. And I'll start with this one. So good afternoon, everyone. I am Dr. Sonam, and today I am going to talk about contraception. So before talking about contraception, मैं चाहती हूँ कि आप सब समझो कि what is about the reproductive system, male and female, and conception कैसे होता है. So जैसे everybody knows that every month एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है एंड वो जाके ट्यूब में ट्रैवल करता है. सो उसे कहते हैं ओवुलेशन टाइम, द मोस्ट फर्टाइल टाइम फॉर अ वुमन. सो जब इंटरकोर्स होता है तो सीमेन इज इजैकुलेटेड इनटू द सर्विक्स और स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं इनटू द ट्यूब. सो वहाँ पे वो फर्टिलाइज होके एग के साथ स्पर्म्स एम्ब्रियो बन के यहाँ जो येलो एरो दिख रहा है यहाँ पे जाके इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस में एम्बेड हो जाता है. सो दैट इज कंसेप्शन. And same in like males, testes में sperm production होता है and it travels to the sperm duct and then during intercourse ejaculation के time semen is released in the woman's body. So this is how the conception and the fertilization process occurs. How contraception works is मैं चाहती हूँ कि सब ये सारा समझ आए क्योंकि all the contraception thing is based on this thing कि आप समझो first कि reproductive system है कैसा. So first of all, what is contraception? Contraception is a method or a system which allows intercourse and yet prevents conception. मतलब इसका मतलब ये कि it's a process जिसमें you can have intercourse but you won't get pregnant at all. And the contraception can be temporary or permanent. And the choice of contraception depends on आप देख सकते हो कि availability कितनी है उस contraception method की.
या उसका कॉस्ट कितना है. Some are free of cost, some is very expensive, and it also depends on age. कभी कुछ like old age women में prolapse करके some of the methods cannot work, which I'll discuss further. And the failure rate, because some of the methods have high failure rate as compared to the other, so it depends on your own personal choice. And the side effects, one is contradiction and one is side effects. People, लोगों को पता नहीं है कि side effect और contradictions में क्या फर्क होता है. साइड इफेक्ट्स होते हैं कि उस चीज, उस मेथड का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है आपकी बॉडी पे. एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इज यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम एंड एनी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड उसमें वो चीज इंडिकेट नहीं करते, उस चीज में नहीं लेते, तो दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हो. सो ये डिफरेंस है. एंड देन कम्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरी मेथड. What are the aims of contraception? जैसे I told you, prevents pregnancy. Then is family planning to check the population growth. Some people are like कि हमें family इतनी चाहिए नहीं, we need much gap between every child, so contraceptions come help करने आते हैं उस time, different methods. And आज like India is the second populated country in the world, so the population growth करके the government has initiated some programs. वो मैं आगे condom में explain करूँगी. And third is avoids the risk of abortion. हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि एक बार बच्चा हो गया, प्रेग्नेंट हो गए, तो आप अबॉर्ट नहीं कर सकते, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लाइक फैमिली प्रेशर भी होता है. सो वहां तक जाने से पहले कॉन्ट्रासेप्शन जस्ट अवॉइड्स योर प्रेगनेंसी थिंग. And the most important is it prevents STDs, that is sexually transmitted disease. And 98 to 99% STDs prevent हो जाते हैं, but there's some form of STDs जो skin to skin touch से होता है, like HPV or herpes. So, but majority STDs आप उससे दूर रहते हो due to this contraception and methods. And the most important once again is the non-contraceptive uses. Besides preventing from pregnancy, contraception like pills, for example, they help in, some people have PCOS. Some people have even cancer may be help karta, because it's just hormones and it's just regulating the hormones in your body. Now comes the types of contraceptive methods. There are many types of contraceptive methods. The first one is natural methods. इसका कोई cost नहीं है, कोई device नहीं चाहिए, not even a medical profession, doctors की जरूरत नहीं है, खुद कर सकते हो. इसके अंदर है abstinence. Abstinence is you have to abstain, अपने आप को रोकना है कुछ दिनों के लिए, आपने करना नहीं है intercourse. कुछ दिन में आप fertile होते हो, कुछ दिन आप infertile होते हो, तो आपने वो chart बनाना होता है, मैं explain करूँगी. Then comes the withdrawal. Withdrawal is like during intercourse, when a male is like about to ejaculate, तो उसी time आप withdraw कर लेते हो उससे बाहर. So that's withdrawal. Then comes the barrier methods. Barrier is like a barrier between the vagina, the cervix, and the male penis. So उसके अंदर आता है condom for the males, diaphragm, it's a female condom, and cervical cap for females, vaginal ring for females. And then comes the chemical methods. Chemical methods means it's a transdermal patch. The patch you have to stick on your body. It's just a small patch and it releases hormones. So आपका ovulation नहीं होगा, egg नहीं बनेगा. So the spermicides is chemicals in form of any foam jellies which kill the sperms. And then the hormonal methods like the pills, emergency pills, or before the intercourse pills. And then the intrauterine devices, जो आप देख सकते हो IUDs राइट साइड पे आपके होगा, यहाँ पे चार्ट में ये कॉपर टी बना हुआ है. So and the last is the surgical methods. So this is a chart I made. This is how So this is a chart which tells how well does a birth control work. So the left side is less effective to the most effective, and the sterilization implants and IUDs are 99% effective because it's obviously a surgical form of thing, but it's permanent. So and then comes the short pill ring, and they are 92 to 97% effective.
डायफ्राम कॉन्डम स्पॉन सर्वाइकल कैप, ये टेम्पररी है, लगा के मतलब इसे निकाल भी सकते हो. इट्स 78 to 82% इफेक्टिव. एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप म्यूट पे कर दोगे, थोड़ा सा आवाज आ रही थी. थैंक यू सो मच. Now comes the natural methods. What are natural methods? It is a type of birth control that relies on observations about the woman's body and menstrual cycle. That means कि एक woman को अपनी body का पता है कि उसके menstrual cycle कैसा है, how she feels about her body, and is it regular or irregular. So it's about observing your own body, the woman's body, so that this type of method relies on this kind of observation. इसके अंदर है एब्स्टिनेंस और द रिदम मेथड. नॉर्मली 28 to 30 डेज का साइकिल होता है, एंड उसमें हम कहते हैं कि बीच में लगा के 14-15 डे पे ओव्यूलेशन होता है, जब एग रिलीज होता है विमेन में. सो कहते हैं कि उस टाइम आप करोगे इंटरकोर्स, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो. लाइक यू कैन सी इन द चार्ट, इनफर्टाइल इज वन इज द जब आपके पीरियड शुरू होते हैं विमेन के. सो almost 7 days you are like infertile. आप अगर इंटरकोर्स करोगे विदाउट एनी कॉन्डम और एनीथिंग तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे. बिफोर योर मेंस्ट्रुएशन कुछ दिन पहले ही अगर आप करोगे तो वो भी कहते हैं कि इनफर्टाइल है. द चांसेस आर 76% इट्स इफेक्टिव. एंड इसका कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं, कोई मेडिकल, यू डोंट नीड एनी डॉक्टर, कोई हार्मोनल साइड इफेक्ट्स नहीं और कोई कॉस्ट नहीं है. बट द डिसएडवांटेजेस, इसका बहुत हाई फेलियर रेट है. एंड ऑब्वियसली एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता बिकॉज देयर इज नथिंग इन बिटवीन, कोई बैरियर है नहीं. एंड एवरी वुमन हैज अ डिफरेंट साइकिल. किसी का रेगुलर होता है, किसी का इरेगुलर होता है. सो उसके ऊपर यू कैनॉट से कि 14th डे पे ही ओवुलेशन होगा. एवरीबॉडीज एग का प्रोड्यूस करने का टाइम डिफरेंट होता है. Now the next is withdrawal method. So withdrawal is penis is withdrawn immediately before ejaculation. As I told you कि जब आप intercourse कर रहे हो और feel होता है कि ejaculate होने वाला है तो मेल निकाल देता है बाहर. तो इसके advantages है no cost, you don't need any medical assistance or anything, there's no contraindications also. Disadvantages is it has very high failure rate and not at all protection against STDs. मैं विड्रॉल में एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे लोग सोचते हैं कि इजैकुलेट करते हुए ही सीमेन निकलता है और स्पर्म्स निकलते हैं. दैट्स नॉट ट्रू. Before ejaculation there is a fluid secreted in men. That fluid sometimes contain, उसमें एक sperms होते हैं कुछ लोगों में. So that is also a carrier for you to get pregnant. So it's not like ejaculation के time ही आप pregnant हो सकते हो. Now comes the barrier methods. Barrier method is a method used to keep sperm from traveling through the cervix and into the uterus. There is like a protection or anything in between the cervix and the penis so that it obstructs the sperms to go into the cervix and the uterus. So उसके अंदर आता है condom, male condom, males के लिए होता है. So it's like the erectile penis is fully covered. It's a thin rubber, latex का बना होता है ज़्यादातर, and erectile penis पे ही इसे करते हैं. राइट साइड पे दिखाया हुआ. इट्स अ वेरी इजी स्टेप हाउ टू पुट इट, एंड यू शुड यूज ओनली वंस. कुछ लोग कहते हैं कि हम एक बार इंटरकोर्स कर लिए कॉन्डम तो दूसरी टाइम यूज हो जाएगा. बियर एंड टेयर के चांसेस होते हैं, फटने के चांसेस होते हैं. प्रेगनेंसी फिर कंसेप्शन इज वेरी इजीली देन, एंड इट हाईली प्रिवेंट्स STDs क्योंकि देयर इज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एट ऑल, एंड इट इज अ वेरी गुड मेथड कि आप STD से बचा सकते हो. It's easily available क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने आप सबको, आई थिंक यू ऑल विल बी अवेयर ऑफ दैट, कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव किया था ताकि लोगों पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए STD से. सो एक निरोध नाम का शुरू किया था उन्होंने कॉन्डम. तो रूरल एरियाज में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. सो इट्स नॉट दैट costly, it's very cheap and it's easy to carry. You can keep it in a purse, in your pockets, and it requires no instructions at all. And one more thing, it has been seen that जो males condom use करते हैं उनके partner female को less chances of cervical cancer होता है. As you know, I told you cervix होता है, तो cervix पे HPV virus होता है जो sexually transmit होता है. So it is the main cause for cervical cancer in women. So using this condom barrier method, the chances are low, very low, of getting cervical cancer in women.
Now the second is diaphragm. That's the female condom. ये आप देख सकते हो सेकेंड नंबर पे. दिस इज द फीमेल कॉन्डम. ये एक तरह से रबर का होता है, एक तरफ इसका ना बैरियर अगेंस्ट इन द वजाइना अगेंस्ट इनडायरेक्ट इंसेमिनेशन. एक आप फीमेल्स के लिए होता है, वजाइना में इंसर्ट करो तो इनका एक एंड रबर का होता है. यू जस्ट हैव टू प्रेस इट एंड इंसर्ट इट इनटू द वजाइना. You can also fill it with a spermicide. कोई foam jelly होती है spermicide, so you can fill it with it. So sperms भी kill हो जाते हैं and it's like a double protection before intercourse. Yeah, some people think that ये female condom आप ज़्यादा देर तक छोड़ सकते हो, but no, because there is a toxic shock syndrome. There is a bacteria overgrowth हो जाती है उसकी, and it can cause toxic shock syndrome and high grade fever होगा, चिल्स होंगे, हेडेक होगा एंड अब्डोमिनल पेन होगी. सो इसको उसी टाइम इजैकुलेशन जब हो जाती है व्हेन यू जस्ट ट्विस्ट इट एंड इसको बाहर. This is actually a YouTube video I put to show how a female condom is inserted. It is a sterile pack जिसमें female condom है. You take it out. And एक तरह से rubber से she is squeezing it and inserting into the vagina, and you have to cover the cervix. This thing is the cervix, so इसको पूरा cover होना चाहिए. इसका ये फायदा है कि जो ये बाहर है ना, ये पूरा आपका लेबिया और उस चीज को बाहर outer जो skin है उसको cover करता है. But the thing is you don't, मेल को condom नहीं use करना है इसके साथ. And second चीज slip होके side से ना निकल जाए अंदर, फिर कोई फायदा नहीं है. और जब ejaculate हो जाता है ऐसे twist करके इसको बाहर निकाल के discard करना. Now comes the cervical cap. Cervical cap is just like a cap thing. It comes in many sizes also, and it is a cup-shaped rubber type होता है, and filled with, you can fill it with spermicide, and before intercourse you can put it inside the vagina near the cervix. ये देखो cervix के बहुत पास है. Diaphragm and cervical cap में ये फर्क है कि diaphragm is not that close to cervix, but as you can see cap बहुत पास है cervix के. So it is much more protective, and इसको ज़्यादा देर तक भी रख सकते हो cervical cap को as compared to diaphragm, क्योंकि उसमें TSS toxic shock syndrome होने के chances ज़्यादा है. इसमें इतने है नहीं chances, so you can keep it for up to 6 hours. And it can be worn for much longer duration as compared to the diaphragm. But it does not prevent from STDs. Sexually transmitted disease से नहीं करता क्योंकि इतना portion covered है, and बाकी तो vagina तो free है, so skin to skin contact करके you can have STDs. And it's expensive also. Yeah, I think so. ये medical professional की help चाहिए होती है इसके लिए, so you have to talk to your gynecologist about it. Now comes the vaginal ring. That's the Nuva ring. Actually, Nuva ring is sometimes available in India, but not mostly. It is kind of a very elastic, flexible rubber ring, and it has hormones, estrogen and progesterone. तो ये जो female hormones है, estrogen and progesterone, ये slowly release करते हैं, and इसको 3 हफ्ते तक रख सकते हो. तो ये hormones release करेंगे और egg नहीं बनेगा, ovary से egg ही नहीं release होगा. And इसको 3 weeks तक रख सकते हैं, and 4th week पे निकालना होता है because you have to bleed menstruation करके. Yeah, sorry. And it do not protect you against STDs because again skin to skin contact, and it's just a rubber ring. You just have to insert, थोड़ा सा इसको squeeze करके ऐसे दिखा रहे हैं जैसे, I hope it's visible. तो उसे squeeze करके you just have to insert it, and obliquely थोड़ा सा टेढ़ा होके पड़ा रहेगा, and ये 3 हफ्ते तक रख सकते हो. Now comes the chemical methods. Chemical methods are methods used to kill sperms, as I told you, and it can be used with condom or any other mechanical devices. इसके अंदर है transdermal patch or the Orthon Evra. It's a patch containing hormones estrogen and progesterone, and the hormones जो उसमें release होते हैं as same as that
NuvaRing ring, it prevents from fertilization as it stops ovulation. Egg नहीं बनेगा, sperms आएंगे तो फिर sperm को egg नहीं मिलेगा तो फिर embryo बनेगा ही नहीं. So no conception. It is a thin flexible 2 इंच का ना बेज कलर का ये it's kind of a tape thing. कहीं पे भी इसको कर सकते हो. यहाँ दिखाया हुआ पिक्चर में अपर आउटर आर्म में, अपर टॉर्सो में, बटक्स में, एब्डोमेन में. सो ये हल्का हल्का हार्मोन रिलीज करता रहेगा और आपका एग नहीं बनेगा विमेन में. It is very 99% effective, and but unfortunately it's not available in India. Then comes the spermicides. Spermicides, as you can see in the picture, it comes in many forms like foam, film, suppositories, tablets, jelly, sponge, creams, and gels. Contraceptive, as I told you, they just kill sperms, and they are inserted into the vagina before intercourse. So आप अकेला इसको vagina में लगा सकते हो या आप condom के साथ कर सकते हो, condom के साथ use कर सकते हो, cervical cap में लगा सकते हो, कहीं पे भी diaphragm में use कर सकते हो, female condom में. अगर इसको सिर्फ अकेला यूज करेंगे स्पर्मिसाइड्स को, so it's 75% to 80% effective. And if you use with condom, so अगर कभी wear and tear हो जाता है condom का, so it's 90%, 98% effective because it's killing the sperm and it's blocking also, तो double action हो जाता है. And the side effects are, अब हम कोई भी स्किन पे क्रीम लगाते हैं तो हम पैच टेस्ट करते हैं कि हमें एलर्जी तो नहीं है. तो सेम इज दिस थिंग, इट्स अ फॉरेन थिंग, so it's just a foam and anything. So आप कुछ लगाओगे तो you have to see, कुछ लोगों को allergic reaction हो जाता है. And sometimes people complain of burning and irritation also. And at the end I would like to say कि हमारे इंडिया के कल्चर में mostly people don't talk to their teenager childs about healthy sexual talks and contraception, क्योंकि वो कल्चर हमारे है नहीं यहाँ पे. But I would recommend you to please kindly talk to your children about contraception, unwanted pregnancies and STDs, so that अगर वो बात भी नहीं करते उनको knowledge होगी कि वो इस चीज से दूर रह सकेंगे. And I want to like to thank Dr. Preeti ma'am for giving me this opportunity. And she's a gem of a person. And I worked with her, under her, for a while. And I've experienced she's a really humble person professionally. And she creates that kind of rapport with patients. And Dr. Preeti ma'am has really created a 5-star, maintained a 5-star clinic with all the facilities and amenities. Um, so, and she guides her patients, and her smile is so contagious कि अगर किसी को कोई problem भी हो ना, वो भी बंदा शांत हो जाए. And I would like to point out that she has really introduced marvelous techniques, robotic surgeries, and cosmetic gynecology, because ladies बात नहीं कर सकती कि उनको urine खांसते हैं तो urine leak हो जाता है एक age में, क्योंकि हमारा stereotype है. And I'm very happy that she has opened up people a lot कि वो बात कर सकते हैं खुल के अपनी problems के बारे में. So it's like a 5-star. यहाँ पे आके इतना अच्छा लगता है, and ma'am is the best. And I'm really thankful to ma'am. She gave me an opportunity again. Thank you so much. And I would like to invite Dr. Isha now to continue with the contraception methods. Hello everyone, and thank you Sonam for such a nice introduction to our today's topic. And now I continue with my topic and telling you the another method of contraception. So coming to hormonal methods of contraception. In this we have oral contraceptive pills, implants, injectable hormones. There are some ring which release the hormones, and then comes the IUD, intrauterine contraceptive devices. So coming to OCTs क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा, आपको पिल्स दी जाती है और आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर आप इसको लोगे, if you are planning for pregnancy, then we will tell you to avoid these type of pills. Otherwise, we can just give you this pills. So basically, pills क्या होती है? Basically आप लेते हो orally, and इसका main function क्या होता है? It prevents the pregnancy.
So how it will act? It basically inhibit the maturation of follicle and ovulation, and it contains synthetic estrogen progesterone. इसका मतलब अगर आपकी बॉडी estrogen progesterone नहीं बना रही तो हम बाहर से आपको estrogen progesterone दे रहे हैं ताकि ये जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करे. Then coming to types of contraceptive pill, 4 तरह के टाइप्स होते हैं. Coming to first classic और combined pill, sequential pills, mini pills and the post coital pills. मैं एक एक करके सभी pills के बारे में थोड़ा सा explain करूंगी. So coming to combined pills, this is the most common used pill. It consists of 21 tablets of estrogen and progesterone. और ये हम स्टार्ट करते हैं 3rd या 5th डे ऑफ साइकिल पर. जैसे ही आपको पीरियड आता है, जो फर्स्ट डे पीरियड आएगा उसे हम फर्स्ट डे लेंगे. देन जो 3rd डे होगा वहां से यहाँ पिल स्टार्ट कर सकते हैं या 5th डे से स्टार्ट कर सकते हैं. और जैसे ही 21 टैबलेट्स खत्म होंगी, आपको वेट करने को बोलेंगे कि 7 डेज के लिए वेट करो. इस बीच में क्या हो सकता है, विड्रॉल ब्लीडिंग होगी. सो कमिंग टू, इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल वर्जन्स होते हैं. हमारी जो बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता है, ये हम बाहर से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड इसका फेलियर रेट अराउंड 4%. pill may not be right if you have any of these conditions. So coming to, अगर आपको कभी कोई ब्लड क्लॉट हुआ है, कभी कोई हिस्ट्री है, अगर कभी कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है, कोई आपको हार्ट डिसीज है, अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है या अनकंट्रोल बीपी रहता है, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कभी आपकी हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है ब्रेस्ट कैंसर की, देन यू हैव टू टेक प्रिकॉशन आल्सो. देन कमिंग, अगर आपकी डिसीज है गॉल ब्लैडर या लीवर, अगर आपकी कॉलिसिस्टेक्टमी होगी, उस केस में भी आपको अवॉइड करना चाहिए. एंड अगर आपको डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज है विद कॉम्प्लिकेशन, देन यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस पिल्स. कमिंग टू सिक्वेंशियल पिल, हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन विद मॉडरेट डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन इट कंसिस्ट. तो बेसिकली ये दिया कैसे जाता है, अगर आप यहाँ देख सकते हो, पहले 15 डेज सिर्फ एस्ट्रोजन दिया जाता है. लास्ट के जो 5 डेज होते हैं उसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन पिल्स दी जाती है. इन पिल्स को ज्यादातर अवॉइड किया जाता है क्योंकि इससे हाई इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. सो ये ज्यादातर अवॉइड किया जाता है एंड इसका फेलियर रेट अराउंड 6% है. देन कमिंग टू मिनी पिल. मिनी पिल जो है एक तरह की बर्थ पिल है. मिनी पिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट जस्ट अ साइज ऑफ द पिल और अलोंग विद दैट इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन. सो बेसिकली इसमें हम जो आपकी बॉडी प्रोजेस्टेरोन बनाती है वो हम बाहर से देंगे and comes in a pack of 28 pills. इसका जो failure rate है, it is around 0.5 to 5%. Then coming to post-coital pills. ये आपने बहुत बार सुना होगा, इसके ads भी देखी होंगी. इसमें क्या होता है? Basically ये क्या होता है? It is called emergency contraception also. अगर in case अगर आपने कोई protection use नहीं किया है, you are not on any pills, so आपको क्या है, unprotected intercourse के बाद within 72 hours आप ये pill ले सकते हैं. It is indicated in only emergency situations, like in case of contraception failure, unprotected sex. Failure rate इसका 2.4% है. इसका रिस्क एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ज्यादा होता है, इसलिए इसको अवॉइड करना ही बेटर है. So basically, what is the mechanism? How the pill work? That we should know. So basically ये क्या करता है? जो pill है, low levels of estrogen in pill they prevent the release from the pituitary. पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है जहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है. तो ये वहां पर उसको ब्रेन लेवल पे पहले स्टॉप करता है. और क्या करता है, हमारे ओवरी में जो एग्स होते हैं उसको मैच्योर नहीं होने देता, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होगी, एग रिलीज नहीं होगा. सो ये ओवुलेशन स्टॉप करता है. दूसरी चीज क्या करता है, ये यूट्राइन लाइनिंग को थिन करता है, जिसकी वजह से आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो प्रिपेयर ही नहीं होगी फॉर द इम्प्लांटेशन. तो इससे भी क्या होगा, कंसेप्शन जो है वो प्रिवेंट हो सकती है. थर्ड थिंग, थिकन सर्वाइकल म्यूकस. अब क्या होता है, जो हमारा माउथ ऑफ द यूट्रस है, दिस इज द सर्विक्स पार्ट. सो यहाँ पर कुछ डिस्चार्जेस होते हैं. सो दिस डिस्चार्ज विल चेंज आल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरकोर्स. सो ये क्या करेगा, इस म्यूकस को थिक बना देगा, जिसकी वजह से स्पर्म जो है ट्रैवल नहीं कर पाएंगे टुवर्ड्स द यूट्रस एंड इट प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन. देन कमिंग टू बेनिफिट्स ऑफ ओसीपीज. बेसिकली एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता ही है, साथ में क्या क्या ठीक करता है. एक तो डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया क्या होता है, जब आपको पेनफुल मेंसेस आते हैं, सो बेसिकली ये उसको भी ठीक करता है. अगर आपके मेंसेस बहुत इरेगुलर है, अगर आपको महीने में 2 बार आ रहे हैं या आपका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा देर तक रहता है, इट कैन बी ड्यू टू एनी हार्मोनल इम्बैलेंस. सो बेसिकली वो रेगुलेट करता है आपकी पीरियड्स को.
इट ऑल्सो डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। बहुत बार क्या होता है, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो तो उस टाइम पे जो सिस्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ओसीपीज पे लो डोज ओसीपीज पे हो तो उससे इंसिडेंस कम रहता है। एंड ऑल्सो ट्रीट, अगर आपको कोई फंक्शनल सिस्ट हो गया, अगर आपको इस पे डालेंगे तो इससे ट्रीट भी हो जाती है, सिस्ट डिसॉल्व हो जाती है। देन इट ऑल्सो प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्ने। बहुत लोग आते हैं पीसीओएस के साथ, तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको एक्ने हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, उनको हिर्सुटिज्म हो रहा है, अनवांटेड ग्रोथ हो रही है ओवर द बॉडी। सो ये सारे जितने भी सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के, वो प्रिवेंट करता है। सो बेसिकली कमिंग टू द नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, एक तो ये कॉन्ट्रासेप्शन के साथ काम कर ही रहा है, दूसरे और क्या क्या काम कर रहा है। बेसिकली इट डिक्रीजेस द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो अगर बहुत ज्यादा मेनोरेजिया हो रहा है जिनको भी, उनमें ये जो फ्लो कम करेगा, डिस्मेनोरिया कम करेगा, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ाएगा, सो बोन वीक होने का डर कम है, एक्ने कम करेगा, हिर्सुटिज्म कम करेगा, एलोपेशिया अगर हेयर लॉस होता है वो कम करता है, ओवेरियन कैंसर 50% कम करता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया मतलब जब आपकी लाइनिंग थिकनिक हो जाती है, जो कि एक रिस्क है कैंसर के लिए, ये वो कम करेगा। अगर जो भी पेन एसोसिएटेड होता है एंडोमेट्रियोसिस के साथ, उसको कम करता है। एंडोमेट्रियोसिस एक तरह का कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड जो मेंसेस वाला ब्लड है वो कुछ कुछ ऑर्गन्स में जाकर चिपक जाता है, तो जब आपको मेंसेस आते हैं तो वो ब्लीड करने लग जाता है। सो ये बेसिकली डिक्रीजेस द रिकरेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंड इट आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ फाइब्रॉइड, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट डिसीज, कोलोरेक्टल कैंसर, पीआईडी। बहुत बार लोगों के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी कम करता है। और जिनको पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम, मूड स्विंग्स रहते हैं, वेट गेन होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, ये उनमें भी कम करता है। एस्थमा का अटैक को भी प्रिवेंट करता है। देन कमिंग टू व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपीज। ये जो साइड इफेक्ट्स है, ये दे आर इन माइल्डर फॉर्म, तो ये किसी को भी हो सकते हैं, लाइक हेडेक, माइग्रेन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडर हो सकती है आपको, ब्रेस्ट पेनफुल लग सकती है आपको, या हेवी हो सकती है ब्रेस्ट, नॉजिया हो सकता है। तो इट इज एडवाइजेबल टू टेक द पिल्स आफ्टर टेकिंग अ हेवी मील, और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। इनकेस अगर आपको बिल मिस की, तो आपको ये रिस्क रह सकता है कि आपको बीच में कभी भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। सो व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आपको कब कब ओसीपी नहीं यूज करनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इन केसेस में तो आपको बिल्कुल ओसीपी यूज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी कैंसर है किसी भी जेनिटल ऑर्गन का या ब्रेस्ट का, अगर आपको कोई भी डीवीटी मतलब पैरों में कोई भी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम रही है, तो आपको तब यूज करना अवॉइड करना चाहिए। कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई लीवर की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल डीरेंज रहती है, तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं। सो इसमें बेसिकली अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है, तो यू शुड गो फॉर अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर स्मोकिंग है तो यू शुड अवॉइड। हाइपरटेंशन है, अगर बीपी 160 199 से ज्यादा है, तो यू शुड अवॉइड दैट ओसीपीज। रीनल डिसीज है, एपिलेप्सी है, डायबिटीज, इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग और एमेनोरिया, इन केसेस में यू शुड अवॉइड दी ओसीपीज। और अगर लैक्टेटिंग फीमेल है तो उसमें भी अवॉइड करना इज अ बेटर। Then coming to it is a kind of injection. It is a Depo-Provera injection. It is a hormone injection. अब क्या है, ये injection जो है ये भी हम दे सकते हैं, तो it will act as a contraceptive. तो basically इसमें क्या होता है, एक shot देते हैं, every 3 months देते हैं, तो basically last for 3 months. It is not reversible. अगर आपको उस बीच में कभी भी pregnant आप conceive conception का सोच रहे हो, तो ये reverse नहीं हो सकता. So you just have to wait and watch. इसमें chances 1.5 दिन के ज्यादा होते हैं, and every 3 months you have to visit doctor for taking another shot, and it is little bit expensive also. So what are the side effect of this injection? Irregular bleeding हो सकती है, पीरियड एकदम से बंद हो सकते हैं, बोन डेंसिटी ऑस्टियोपेनिया का डर रहता है इसमें, वेट गेन हो सकता है, आपकी फर्टिलिटी डिलेड हो सकती है। इवन इफ यू स्टॉप द इंजेक्शन, फर्टिलिटी रीगेन होने में भी टाइम लग सकता है, तो 6 months भी लग सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। लोकल इंजेक्शन जो भी रिस्क होता है, वहाँ पर रैश हो सकता है, आपको टेंडर हो सकता है स्किन साइड, तो उसका ध्यान रखना है। कमिंग टू इम्प्लांट्स, there are some devices which we can place in the body, और वो हार्मोन के साथ फिल्ड होते हैं, एंड दे प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। बेसिकली ये स्किन के अंदर डिपॉजिट होते हैं और ये धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं हार्मोन, और ये सारे contraception का काम करते हैं। तो बेसिकली इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर। you have to come to the clinic and doctor will insert that under your skin. It is inserted in the arm, और इसका 99.95% effectiveness है, but is right now it is not
that much used. So basically ये क्या है, इम्प्लांट जो है हम अंडर द स्किन इम्प्लांट करते हैं with the help of this applicator, और इट रिक्वायर्ड, अगर आपको इसको रिमूव कराना होगा तो इसके लिए यू हैव टू नीड अनदर विजिट. अब टाइप्स ऑफ इम्प्लांट की बात करें तो नॉन प्लांट इम्प्लांट एक तरह का प्लांट इम्प्लांट होता है, इसमें से प्रोजेस्टेरोन होता है, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते रहते हैं, बट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन. अगर आपको रिस्क है एसटीडी का अपने पार्टनर से, तो यू हैव टू टेक अनदर कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज barrier method condom. It can have side effects also. Then coming to vaginal ring, right now it is not much in use. It basically contains small amount of progesterone, and basically it is, the ring is fitted in the vagina for 3 weeks of menstrual cycle. After that it has to be removed. So पहले एक बार ring डल जाते हैं, 3 हफ्ते वेट करना होता है, उसके बाद ये रिमूव होती है. देन जैसे मेंसेस आएगी उसके बाद फिर ये रिंग जो है आपके सर्विक्स में प्लेस की जाती है. सो कमिंग टू सम क्वेरीज, देन डॉक्टर पीते विल continue with another method. So sometimes patient asks what if they missed one pill. So जैसे अगर आप एक पैक ले रहे हो 21 डेज का पैक ले रहे हो कंबाइंड ओसीपीज का, और बाय चांस आपने एक पिल मिस कर दी है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे आपको याद आता है तो ट्राई टू टेक पिल, उसी टाइम वो पिल ले लो, और जो आप उस दिन पिल लेने वाले थे वो तो उसी टाइम पे आप लोगे. सो बेसिकली अगर आपने एक दिन मिस किया तो नेक्स्ट डे जो है आप 2 पिल्स लोगे. व्हाट इफ यू मिस 2 और मोर पिल्स, सो और उस टाइम पे आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, तो एक तो आप उस टाइम पे जो आपने पिल मिस की है वो आप नेक्स्ट डे लोगे, और साथ में फॉर अ वीक यू हैव टू यूज अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज कॉन्डम. सो ताकि कि जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो. Then if you have any question, you can just drop the questions in the chat box. Dr. Preeti will discuss the another method. So this is very important. So basically ये OCPs जो है ये सभी को दी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको OCPs क्यों दे रही है और किस कंडीशन में आपको अवॉइड करनी चाहिए. सो नॉर्मल साइड इफेक्ट जो हैं, these are possible. This kind भी possible. So जब आपने अगर पिल मिस की है तो ये भी डर होता है कि इस टाइम पे आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है. Now I would like to invite Dr. Preeti for her topic, and she is gonna speak on intrauterine contraceptive devices and permanent method of contraception. So, ma'am, are you there? Can you hear me now? Yes, ma'am. Yeah. So, Isha, thank you so much. It was a very wonderful presentation by you and Dr. Sonam, and both of you have explained very nicely. Those who have logged in, I'm sure उनको काफी हद तक कॉन्ट्रासेप्शन समझ में आ गया होगा. अब ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया था, they were more of the methods which you can buy over the counter and आप उनको यूज कर सकते हो, और पिल्स हैं, और जो पहले दूसरे डायफ्राम्स एंड कॉन्डोम्स हैव बीन डिस्कस्ड. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मेथड्स फॉर विच, जिसको आप जो बहुत इजी है पर आप अपने आप नहीं यूज कर पाओगे, आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है. You all must have heard about something known as copper T. कॉपर टी जो है पहले लिपीज लूप के नाम से भी जानी जाती थी. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत सारे जो हमारे ग्रैंड मदर्स हैं और मदर्स हैं वो लूप के बारे में बात करेंगे आपसे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो. तो एक लिपीज लूप करके आता था, फिर ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता था. अब उसका एक रिफाइंड फॉर्म आता है विच इज नोन एज कॉपर टी. So why is it called copper tea? अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो it looks like a tea, and that, और ये जो इसके ऊपर गोल्डन लगा हुआ है ब्रॉन्ज कलर, this is a copper, so that's why it's called copper tea. Now इसका क्या यूज है, जो यूट्राइन कैविटी है वो एक पेयर शेप डिवाइस है, उसके अंदर ये लगा दिया जाता है, एंड इट कैन बी डन इन द ओपीडी. इसमें कोई पेन नहीं होता. ये स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स
I've been putting copper T and patients are very comfortable. इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि ये आप दोनों ही पार्टनर्स को इंटरकोर्स के टाइम फील नहीं होता. इट इज फॉर लॉन्ग टाइम. आप 3 साल की आती है, 5 साल की आती है, 8 साल की आती है और 10 साल की भी आती है. सो आपको जितना लंबा कॉन्ट्रासेप्शन का पीरियड चाहिए आप उस वाला ये डिवाइस यूज कर सकते हो. थर्ड, it is very very effective. It is 99% effective in preventing the pregnancies. Fourth, ये जो इसका जो धागा है ये वजाइना में के अंदर हाई अप ये रहता है और ये आपको नॉर्मली नहीं फील होता. जब इसको निकलवाना है बस ये थ्रेड से पुल करके हम इसको निकाल देते हैं. सो इट्स अ टोटली पेनलेस मेथड और इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग मेथड एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज इट इज नॉट अ हार्मोन. It can stay for so many years and the failure rate is 0.6 to 0.8% only. So this is the uterine cavity and ये यहाँ पर करता है. ये OPD procedure, इसके लिए बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है. बस आप यहाँ से cervix को हम hold करते हैं and then we just insert it. Just takes 2 seconds and it's a very good method. And how does it work? एक तो ये क्योंकि uterine cavity के अंदर कोई device है तो यहाँ पे pregnancy को ये स्टे नहीं करने देता. सेकेंडली इसके अंदर जो कॉपर होता है वो स्पर्म और एग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. इवन द एम्ब्रियो, अगर बाय चांस एग और स्पर्म फ्यूज करके एम्ब्रियो बन भी गए तो इट विल किल द एम्ब्रियो आल्सो. थर्डली ये बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग प्रेजेंट देयर इट कॉजेज एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन. मतलब कि वो इन्फेक्शन नहीं होता पर जो वहाँ जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको पता चलता है कि कोई फॉरेन बॉडी हमारी यूट्राइन कैविटी में आई है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं और वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो चेंजेस द लाइनिंग की मिल्यू. मिल्यू मीन्स उसका नेचर उसको माइक्रोस्कोपिक बायोकेमिकल लेवल्स पे चेंज कर देता है कॉपर, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी इम्प्लांट नहीं होती. सो अल्ट्रासाउंड पे हम इजिली कॉपर टी को देख सकते हैं कि उसकी पोजीशन सही है कि नहीं. एट टच क्लिनिक वी ऑलवेज पुट इट अल्ट्रासाउंड गाइडेड एंड वी ऑलवेज चेक इट. क्योंकि कुछ लोगों ने सुना होगा कि कॉपर टी जो है वो ऊपर चली जाती है या यूट्रस को परफोरेट कर देती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लगा रहा है उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, वो ठीक से लगाए. और अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगा सकते हो जिनके सेंटर्स पे अल्ट्रासाउंड है देन इट बिकम्स अ वेरी गुड help. So we put under ultrasound guidance and you can see it very nicely resting inside the cavity. Next one please. Yeah. अब copper T जो previous. Yes. So copper T जो होती है वो 2 तरीके की होती है. एक जिसके अंदर कॉपर होता है और एक आती है मायरीना के नाम से. मायरीना एक्चुअली इज अ ट्रेड नेम. सो बेसिकली इट इज नोन एज LNG डिवाइस और इंट्रायूट्राइन सिस्टम. इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो काफी सारा इसके अंदर ही फिल होता है सिलेंडर में. और पर डे अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड एट योर इनसाइड योर यूट्राइन कैविटी. तो जिनके पीरियड्स बहुत हैवी आ रहे हैं या जिनको एडिनोमायोसिस है या बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं तो उनमें कई बार अगर हम प्लेन कॉपर टी लगाते हैं तो उससे पीरियड्स ब्लीडिंग बढ़ जाती है. तो वहाँ पे मायरीना रियली हेल्प्स. मायरीना इज समथिंग Mirena is something which has really helped gynecologists to avoid hysterectomy. जब से Mirena इंट्रोड्यूस हुआ है या ये LNG डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड में तो hysterectomy rate has reduced by more than 90%. आजकल हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग या एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस के लिए यूट्रस को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. हम Mirena फिट कर देते हैं और ये जो मुंह से जो हम टैबलेट खाते हैं प्रोजेस्टेरॉन वो लोकली रिलीज हो जाता है. तो इसके डबल पर्पस सॉर्ट आउट हो जाते हैं. एक तो ये कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम करता है, ब्लीडिंग भी कम करता है और आपको ओरल पिल्स नहीं लेनी पड़ती और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते. नेक्स्ट वन प्लीज. सो मायरीना क्या करेगा, वो आपकी लाइनिंग को थिन कर देता है, स्पर्म्स को ट्रैवल करने से रोकता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है एंड इट इज यूज्ड फॉर 5 years. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइस. पर हर जने को मायरीना नहीं लगाने की जरूरत है. अगर आप प्लेन कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज कर रहे हो तो देन कॉपर टी इज गुड इनफ. पर अगर आपके पीरियड्स बहुत हैवी आ रहे हैं या आपको अदर मेडिकल इश्यूज हैं लाइक एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, तो फिर देन मायरीना रियली हेल्प्स देयर.
ये अब क्योंकि ब्लीडिंग कम करता है तो उसकी वजह से आपका एनीमिया भी ठीक हो जाता है. इट इम्प्रूव्स डिस्मेनोरिया एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया. एक चीज है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पेरीमेनोपॉजल हाइपोप्लेजिया या इवन पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग जब होती है और उसमें अगर कैंसर नहीं है, सिर्फ लाइनिंग ही बढ़ी जा रही है, तो हम मायरीना लगा सकते हैं और उसमें यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. So what is the advantage of a copper T device? The advantage is that it is very effective, it has a big longevity, it's very convenient to use, it can be used with breastfeeding, it is reversible. जब आपको लगता है कि you can want to plan a pregnancy, you can go to your gynecologist and they can just remove it in 2 minutes. It's not a painful process, and also it is very inexpensive. Except for the initial cost of insertion, उसके बाद कोई और उस पे खर्चा नहीं है. But there are few contraindications. अगर आपको इन्फेक्शन है या आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या वेजाइनल ब्लीडिंग है जिसको अभी तक डायग्नोस नहीं किया गया है, और एक कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस की शेप बहुत डिफरेंट होती है, देयर समथिंग नोन एज सेप्टेट यूट्रस, और देयर आर 2 यूट्रस होते हैं. सो ऐसी कंडीशन में ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टेक्निकल एफर्ट. तो उस कंडीशन में हम कॉपर टी नहीं लगाते हैं. Previous ectopic is a relative contraindication. आपको ये समझना है कि कॉपर टी की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज बहुत कम होती हैं, और पर अगर हो जाती है तो उसमें फिर रिलेटिवली एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी ट्यूब में होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं. पर दैट डजंट मीन कि अगर आपको पहले एक्टोपिक हुआ है तो आप कॉपर टी नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो देन ऑब्वियसली कॉपर टी नहीं लगाना है. कुछ लोगों में कॉपर टी के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है तो डरने की कोई बात नहीं. अगर तो आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो फिर कॉपर टी निकाल के यू कैन टेक अ मेडिकल अबॉर्शन. पर अगर आपको कंटिन्यू भी करना है तो कॉपर टी कैन बी जस्ट रिमूव्ड एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूज अनहार्म्ड यूजुअली. इसके पर कुछ डिसएडवांटेजेस. सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज यही है कि यू हैव टू चूज योर डॉक्टर वेल. अगर आपके डॉक्टर को पता है कि कॉपर टी कैसे लगाना है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर कोई अनट्रेन्ड person, if that person tries to put a copper T, then it can lead to cramp or pain or spotting after insertion, and also it may be expelled after first few months. ये बहुत important है कि आप सबको पता होना चाहिए कि कॉपर टी लगाने के 1 महीने के बाद जब पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद जाके एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कॉपर टी का मैक्सिमम एक्सपल्शन रेट जो होता है दैट इज आफ्टर फर्स्ट पीरियड. अगर कॉपर टी अच्छे से लगी भी है तो भी उसको बॉडी एक्सपेल कर सकती है, एंड अगर 1-2 महीने आराम से निकल गए तो फिर वो एक्सपेल यूजुअली नहीं होती है. वी ऑलवेज एडवाइज कि आप जो स्ट्रिंग्स है कॉपर टी के वेजाइना में हैंड इंसर्ट करके फील कर सकते हो, पर इफ यू आर नॉट लाइकिंग दैट थिंग देन यू कैन जस्ट लीव इट, और 6 months पे जाके आप अपने डॉक्टर को चेक करा सकते हो. नाउ द women who cannot use estrogen containing birth control pills or they are on breastfeeding, तो उनके लिए बेस्ट मेथड जो है वो ये कॉपर टी डिवाइस है, and it can be inserted immediately after delivery of a baby or after a miscarriage. During cesarean also it can be inserted, but क्योंकि cesarean के टाइम पे यूट्रस काफी बड़ा होता है तो उसके एक्सपल्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. Now हमने सारा कुछ फीमेल्स के बारे में बात की कि फीमेल्स में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं. सेम वे कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी यूज्ड बाय द मेल्स आल्सो. सो गॉसिपॉल इज अ नॉन हार्मोनल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव. ये कॉटन सीड से बनता है, but it has been documented to have irreversible effects on the male fertility, and so we do not now use it, and it never became so popular. It was found that it was causing azoospermia. Next one. So barrier method is one very good method which already Dr. Sonam and Dr. Isha explained to you. अब हम आते हैं परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. अभी तक जितना भी हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया दैट वाज टेम्पररी मेथड, मींस कि आप उसको जब भी हटाओगे उस मेथड का यूज करना तो यू कैन कंसीव. बट देन जिनकी फैमिली लाइफ कंप्लीट हो चुकी है या जो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो आगे कभी भी, दे कैन गो फॉर द परमानेंट मेथड्स. नाउ परमानेंट मेथड कैन बी इन मेल्स एंड इन फीमेल्स. सो इन मेल वेसेक्टमी इज द परमानेंट मेथड, दैट इज जो वास डिफरेंस होते हैं उनको उन पे निक लगा के उसको ब्लॉक कर देते हैं. सो
and female. So you can see in this one very nicely that this is the vas deferens, this is the testes and epididymis. So it's a very simple method and it's done under local anesthesia. It's just quick and quick out procedure है. इसमें कोई आपकी normal activity में कोई नुकसान नहीं होता है, intercourse करने में या erection में कोई problem नहीं होती है. तो इसमें एक स्किन पर, स्क्रोटल स्किन पर निक लगा के, लोकल देने के बाद एक छोटा सा निक लगा के इन ट्यूब्स को काट देते हैं और उनको बांध देते हैं. तो स्पम्स जो है टेस्टिस से पेनिस तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज नोन एज वेसेक्टमी. इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी मेथड एंड इसके साथ कोई आपको कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी गुड मेथड. जैसे मेल्स में ये होता है वैसे ही फीमेल्स में वी डू स्टेरिलाइजेशन और ट्यूबल लाइगेशन. So if you see this figure, this is the uterus, ये साइड में ट्यूब है और ये ओवरी है. So पहले तो लेप्रोस्कोपी नहीं थी, तो ओपन तरीके से छोटा सा कट पेट पे देके इन ट्यूब्स को लाइगेट कर देते थे या बांध देते थे. अगेन प्रिंसिपल इज सेम कि egg is released from the ovary, comes to the tube. So just pumps they come from the uterine cavity to the tube. So ये दोनों का फ्यूजन रोक देता है. आजकल तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोपी. सो इन लेप्रोस्कोपी एक छोटा सा निक अम्बलाइकस पर आता है और साइड में एक छोटा सा निक आता है 5 mm का, जिसको हम ग्लू से चिपका देते हैं. कोई स्टिच भी नहीं आता है. इट्स कॉल्ड स्टिचलेस प्रोसीजर. और आप आते हो और आपको पूरा बेहोश किया जाता है, आपको कोई पेन नहीं होता. एंड देन विन 5 minutes इट इज डन एंड बाय 2 hours यू कैन गो होम, जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है. तो उसमें यहाँ पे रिंग लगा देते हैं या इसको कट भी कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिकली. So what is the benefit of laparoscopic sterilization? There is no need of any contraception after that. Once it is done, it is a permanent method, and it does not affect women's sexual activity or menstrual cycle. So what contraception can we use after the childbirth? Once a baby is born, then people are just so worried that now what they can use. Suppose the first child is born and they would want to have a contraception to plan a second child later on. So the best method I would say is the copper T. कॉपर टी पहले 3 महीने अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो वैसे ही कुदरती ही कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट रहता है. बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोलैक्टिन आपका ओवुलेशन नहीं होता है. पर अगर आप 3 महीने के बाद यू हैव टू यूज सम कॉन्ट्रासेप्शन, नहीं तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज बढ़ जाती हैं. सो यू कैन यूज अ बैरियर मेथड और यू कैन यूज अ कॉपर टी. नेक्स्ट वन. बहुत लोगों को ये रहता है कि कहीं कॉन्ट्रासेप्शन से हमारे ब्रेस्ट मिल्क पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नो, द हार्मोनल मेथड्स आफ्टर 3 months कैन बी यूज्ड एंड दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द बेबी. Using IUD also doesn't affect your milk and copper does not get into the milk. So it is totally up to you that whichever method you would like to use. I normally feel, which is my personal advice, कि till you are 40, try to go for the temporary methods, because आजकल बहुत लोग हैं जो 40 के बाद भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं. दूसरा, ये सबको पता होना चाहिए बेबीज में या चिल्ड्रन में मैक्सिमम जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होती है वो फर्स्ट 8 years तक मैनिफेस्ट हो जाती हैं यूजुअली. सो टिल योर यंगर चाइल्ड इज नॉट 7 or 8 years old, या आप लोग आपकी एज 40 के ऊपर नहीं है, then you can go for a temporary method, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे temporary methods आ चुके हैं. Now one very important question which people ask is कि permanent method अगर हम करते हैं वो reversible है कि नहीं. So you have to understand the permanent method is being done so that it is permanent. But still अगर आपकी tubal fallopian tubes को ring लगाया गया है, it can be removed. Obviously, the chances of conception, they decrease, but then still the outcome is very good. Almost 80% can conceive, but it will require a surgery again to remove those rings and to reconstruct your tubes. So this is what we would like to say in the end, that always stay Deva mom. आजकल सब बच्चों के, all girls, they have to follow their own career. So the life has changed a lot. So it is not at all necessary that you should go for unwanted pregnancies. You can plan your baby. Every child is a blessing, and nowadays baby hona
is not only that you have given birth to a child, you have to plan the career, you have to plan child's career, to plan your career. You have to see the finances, you want to give the best to your child. So it's always better that we do not have an unwanted pregnancy, and with such good methods आप आराम से plan कर सकते हो. एक और चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो आईपिल खाते रहते हैं. आईपिल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आईपिल इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. अगर आपको साल में 2 बार आईपिल से ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स यू रियली नीड टू गो फॉर अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन. एंड रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शंस आर वेरी वेरी सेफ. हार्मोनल पिल्स को लेके इतने मिथ्स हैं लोगों में. यस, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू स्टार्ट, यू नीड टू गेट इवैल्यूएटेड फ्रॉम योर डॉक्टर कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें आप पिल्स नहीं खा सकते हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं है. ये सब कुछ डॉक्टर ईशा ने आपको शुरू में बताया है. पर अगर आपका कोई ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, यू कैन टेक पिल्स फॉर मेनी मेनी ईयर्स सेफली एंड देयर इज नो हार्म इन टेकिंग इट. तो आप अननेसेसरली आईपिल्स मत लीजिए और अननेसेसरली आईपिल्स मत खाओ, क्योंकि आईपिल में बहुत हाई डोज ऑफ हार्मोन्स होता है. सेकेंडली, अगर आईपिल टाइम पे नहीं खाई तो इट कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज ट्यूब में प्रेगनेंसी, और इट कैन लीड टू वेरी अदर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन यू. सेकेंडली, एक बार अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर आईपिल लेना विल नॉट हेल्प, और या ओसी पिल्स खाना विल नॉट हेल्प. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैम प्रेगनेंसी हो गई थी, अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, हमने आईपिल खाया तो भी कुछ नहीं हुआ. अगर आपकी एक बार प्रेगनेंसी हो गई है, so do not worry. The Indian government safely allows medical termination of pregnancy till 20 weeks. So you can go to a good doctor and get your ultrasound done कि कहीं प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है, और फिर देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और सर्जिकल एज पर योर कन्वीनियंस. So I think you must have found these session very very helpful. हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे. We work very hard to bring these sessions to you. So it would be really nice if you can spread a word about these webinars which are happening on Friday. It is totally for your health and for the health of the people around you, and we would really like more people to log in. Thank you. Ma'am, there are some questions in the chat box, so Dr. Sonam will tell the questions and please answer that questions, ma'am. Okay. Dr. Sonam, please go ahead. Ma'am, so the first question by Shruti is, how frequent mini pills should be taken in a month? Okay. Shruti, I think you are thinking about iPill. Mini pill तो जो ओनली प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स होता है उनको हम मिनी पिल्स कहते हैं. सो आजकल प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं. सो आई थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज द आईपिल, एंड आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट अगर आपको साल में 2 बार से ज्यादा आईपिल की जरूरत पड़ी है, प्लीज मूव टू अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन. And ma'am, the next question is, what is the failure rate of CU IUD, please, for intrauterine devices? The failure rates are very less. For the intrauterine device, it is less than 1%, and for the combined oral pills also, it is less than 1%. Now, it totally depends upon how you are taking these pills and IUD. If you miss the tablets and you're not taking it properly, the failure rate will be very high. So, they are very, very safe and effective methods. And ma'am, the next question is, what if one conceives immediately after stopping iPill? Any risk to the baby? After stopping iPill, I think again you want to say that आपने iPill खाई और आप pregnant हो. Okay. So अगर आपने iPill खाई और आपकी प्रेगनेंसी है तो सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि कहीं वो एक्टोपिक तो नहीं हो गई है. सेकेंडली, अगर वो एक्टोपिक नहीं है, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है और आपका माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आपने आईपिल खाई है तो आई बिलीव यू डू नॉट वांट टू हैव दैट बेबी. पर अगर सपोज आपका माइंड चेंज हो जाता है, देन इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन. यू कैन कंटिन्यू विद योर प्रेगनेंसी. And if you do not want a pregnancy, then you have to go for proper termination method, either medical or surgical. Ma'am, that's all for the questions. Thank you. Thank you, Sonam. All to you, Achal. Achal, we can't hear you. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Sonam.
Now I announce our last webinar lucky draw winner, Miss Dilisha Goyal. Congratulations, ma'am. She is Riya. ये हमारे 24 जुलाई को जो वेबिनार था उसके विनर रहे हैं. तो ये हमारे क्लिनिक में आए थे तो हमने इनको टोकन ऑफ लव दिया है. So now, quick information about the Touch Clinic services. We take all precautions for COVID-19. Consultation with prior appointments only. COVID test is done prior to delivery and surgery. We take care of all the safety parameters. We have our Touch Pharmacy, quick delivery of medicines, home delivery of medicines available. You can call on the number 9613112000. आप इस नंबर पे कॉल करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं, बट प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए. सेकंड इज टच लैब. अवेलेबल होम ब्लड सैंपल कलेक्शन फैसिलिटीज है हमारी. आप इन नंबर्स पे कॉल करके एग्जीक्यूटिव को अपने घर पे बुला सकते हैं. हमारे नंबर्स है 9915499681 एंड सेकंड है 9915748821. आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जैसे कि आपको पता है कोविड चल रहा है, कई लोग जो है नहीं आ पा रहे हैं, वो वीडियो कंसल्टेशंस एंड फोन कंसल्टेशंस कर सकते हैं. मैम अवेलेबल रहते हैं 10 to 6 PM. ये नंबर्स है हमारे. अपनी बुक, आप अपनी जो बुकिंग है वो इस नंबर्स पे जो है बुक करवा सकते हैं. 9915748821 एंड 9888448803. तो आप इसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं. तो वीडियो कंसल्टेशन के लिए मैम अवेलेबल है, फोन कंसल्टेशन के लिए, और आप विजिट भी कर सकते हैं. हमारा क्लिनिक है द टच क्लिनिक, A5A8 बेस्टिक बिजनेस टावर, सेक्टर 66 मोहाली में. और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपसे मिस हो गई है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं. डेली हम उस पर अपडेट करते हैं. हमारी जो वेबसाइट है वो है www.thetouchclinic.com. एंड में आ रही है, आप उसको फोटो उसकी क्लिक कर सकते हैं. किसी ने अगर एंड में आके देखा है या कोई बीच में आया है, उसने पूरा नहीं इसको देख पाया है, तो ये हमारा लाइव फेसबुक पे भी चल रहा है. टच क्लिनिक के नाम से हमारा फेसबुक पे आईडी है और डॉक्टर प्रीति के नाम से भी है. आप वहां पे जाके पूरा देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. इन केस फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको जो नंबर्स बताए इन पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर देंगे. सो नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार है वो है 7 अगस्त का, जिसमें हमारे जो मॉडरेटर है वो है डॉक्टर पायल, और जो टॉपिक रहेगा वो मोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग के ऊपर रहेगा. ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइमिंग्स 4 to 5 पे लॉग इन होकर उसकी इंफॉर्मेशन लीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. Thank you, Achal. I would like to thank Achal also. She is the person who is instrumental behind all these webinars, और वो ये इतना अच्छे तरीके से इन webinars को organize करती है और आप सबके पास लेकर आती है और आप सबको recording भेजती है. Thank you, Achal. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone for joining. See you next Friday, same time, same day. Same day. Okay, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am.